ये ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड इधर आ रहे हैं, इसके डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, थोरैसिक और लंबर सेगमेंट से निकल रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड thoracolumbar डिवीजन, है ना. देन द पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, this division actually it works by the side of the sympathetic system. Okay, ऐसा नहीं कि sympathetic system overact करना लगे. Okay, so it checks its balance in your body. Okay, it is also always working by the side of the sympathetic system. Okay, that's why it is called parasympathetic division. Usually it is having a reciprocal influence. Okay, अगर उसका हार्ट रेट बढ़ रहा है तो ये कम करना चाहिए. Okay, so it is usually it is having a reciprocal influence on the functioning, okay, to that of the sympathetic system. It checks the overactivity of the sympathetic system and it makes the autonomic response smooth and good. Okay, so it smoothens the autonomic response actually. So as I have told you, it is coming from which part? It is coming from which part? क्या हुआ बेटा? अरे तो तुम्हें अभी याद आ रहा है? तुम हाँ? तुम्हें क्लास में आना नहीं चाहिए नहीं तुम्हें? टेक आउट योर बैग एंड गो. टेक आउट योर बैग. So as I was telling you that this division is coming from which part of the spinal cord and the brain, that is the cranial part and sacral part. That's why it is called craniosacral outflow. You are disturbing the class. Okay, next time इसको ध्यान रखना, इस तरह से नहीं चलता है क्लास में. So it is called craniosacral division of the autonomic nervous system. You can see here it is coming from the cranial flow and the sacral flow. So always I have told you that this autonomic nervous system, always there is balance between the sympathetic and parasympathetic division. As the need arises, as per the situation, what happens that the sympathetic division may overactive हो सकते हैं. Okay, as per the need of the body. So it may, sympathetic division may go up, like especially in stressful situations, you all know, when there is, suppose you are in contact with a big black dog, like what will happen? If it is really a small dog, what will happen? You will try to fight with that dog, isn't it? So, or if it is a really big one, what will you do? You will try to save yourself, isn't it? So, fight or flight situation, isn't it? Or when you are having a very comfortable situation, in that situation what happens? You suppose you are having a good meal and you are just relaxed. What will happen in that situation? The parasympathetic system will be overactive, isn't it? It will be overactive. So that's why it is also called rest and digest system. Rest and digest system भी कहते हैं, isn't it? So always there is a balance between these two. So coming on to the enteric nervous system, we have all discussed. It is a local neuron plexus in the GIT. हमारे GIT में क्या होता है? Walls होते हैं. उस walls के बीच में क्या होता है? अगर आप GIT को काट दो किसी का थोड़ी देर के लिए फिर भी वो क्या करता है? Movement करता है, isn't it? It can move because there is a local neural plexus in that. है ना? उसको mini brain भी कहते हैं. गट का mini brain कहते हैं. Okay, or it is also called the third division of the autonomic nervous system. Okay, so this is having a local neural plexus in the form of, आप GIT में पढ़ोगे वहाँ पे डिटेल में पढ़ाएंगे. There is a Meissner's plexus, there is a Myenteric plexus, नोज के plexus होते हैं, small neurons के. So those plexus forms this enteric nervous system. Basically they are concerned with the secretions from the GIT and they are involved in the motility of the GIT. Okay, so वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, just to know the divisions
I have described here. It is concerned with the regulation of GI function. Now coming on to the sympathetic nervous system. Today we will mainly discuss about the sympathetic outflow. You have to understand its organization. Very simple if you understand. नहीं तो बहुत difficult लगता है books में. So I have just told you that it is coming from the whether it is sympathetic or parasympathetic, है ना. इसके जो डिविजन आ रहे हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के जो आ रहे थे वो कहाँ से निकल रहे थे, उसके जो न्यूरॉन इज कमिंग फ्रॉम द इंटरमीडियो लैटरल हॉर्न सेल्स, है ना. इंटरमीडियो लैटरल हॉर्न सेल्स निकलने के बाद वो जाते कैसे, आई विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम. दिस इज कमिंग फ्रॉम द इंटरमीडियो लैटरल हॉर्न सेल्स से आया इधर. दिस इज द वेंट्रल हॉर्न, यू ऑल नो, वेंट्रल और एंटीरियर हॉर्न सेल्स. जब बाहर निकलते इसको वेंट्रल रूट कहते हैं, है ना. उसी तरह उसको डॉर्सल रूट कहेंगे, ठीक है. जब ये आते हैं इधर, यू कैन सी हियर, उधर जो डॉर्सल रूट से जो आ रहे हैं वहां पे डॉर्सल रूट गैंग्लियन बनाते हैं, है ना. डॉर्सल रूट गैंग्लियन वहां से फिर इसे इधर आते हैं एंड दिस टू रूट्स, वेंट्रल रूट और डॉर्सल रूट, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, स्पाइनल नर्व्स बनते हैं. दिस फॉर्म्स द स्पाइनल नर्व. अब ये स्पाइनल नर्व आगे जाने के बाद दो रैमस में ये बढ़ते हैं, दैट इज द एंटीरियर और पोस्टीरियर रैमस, एंटीरियर रैमस एंड पोस्टीरियर रैमस, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर समझना, है ना. सो व्हाट हैपेंस दैट यहाँ पे हमारे गैंग्लियंस होते हैं. आपको बताया कि सिंपैथेटिक सिस्टम के लिए क्या होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम में डिफरेंट गैंग्लियाज होते हैं. वेदर पैरासिम्पैथेटिक में भी गैंग्लिया होंगे, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में. These ganglias are situated in different locations. तो एक क्या होता है हमारा वर्टिब्रा के अलोंग होते हैं दोनों साइड में, that is called paravertebral ganglion. It is a chain of ganglia, they are interconnected chain of ganglia, ठीक है. वो उसको हम चेन गैंग्लिया भी कहते हैं, पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया भी कहते हैं. ओके, सपोज दीज आर द गैंग्लियंस व्हिच आर लोकेटेड, चेन गैंग्लिया, है ना. इस तरह से गैंग्लिया है. सो व्हाट हैपेंस दैट ये गैंग्लिया में इसको, ये जो हमारे न्यूरॉन्स है, प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स कहेंगे ना. गैंग्लिया से पहले अगर आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स. अब ये गैंग्लिया में आना होता है, इफेक्टर ऑर्गन में पहुंचना है ना, अपने को काम करना है, नर्व्स को इसको एक्शन करना है. तो इफेक्टर ऑर्गन में जाने के लिए गैंग्लिया में पहले आएगा और तब यहां से फिर जाने के बाद इफेक्टर ऑर्गन में जाएंगे. अब यहां पहुंचने के लिए, इफेक्टर ऑर्गन में पहुंचने के लिए डिफरेंट पाथवेज यूज करते हैं. ओके, like I was just telling you that this preganglionic neurons, they enter this ganglia, है ना, paravertebral ganglia, chain ganglia में जो इंटर कर रहा है. अभी जो इंटर कर रहा है ना, इंटर करने के लिए एक पाथवे होता है, उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाइट रेमाई कम्युनिकेंट्स. क्या कहते हैं, व्हाइट रेमाई कम्युनिकेंट्स. ये व्हाइट रेमाई कम्युनिकेंट्स हो गए, ठीक है. इस गैंग्लिया में इंटर करने के लिए हुआ. अब एग्जिट करने के लिए क्या है, दैट इज द अदर कम्युनिकेंट, इसको आप बोलते हो ग्रे रेमाई कम्युनिकेंट. क्या कहते हैं, ग्रे रेमाई कम्युनिकेंट. सो व्हाइट रेमाई कम्युनिकेंट एंड ग्रे रेमाई कम्युनिकेंट. व्हाइट वाले क्या होंगे, इंटर करने के लिए गैंग्लिया में और इसे एग्जिट करने के लिए, ठीक है, ग्रे रेमाई कम्युनिकेंट. एग्जिट करने के बाद वापस ये स्पाइनल नर्व्स में जाते हैं और इसके दो डिविजन्स बनते हैं और तब ये इफेक्टर ऑर्गन में जा रहे हैं. समझ आ रही है. सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर हियर, ठीक है. अब ये जो यू कैन सी द स्ट्रक्चर, वेंट्रल हॉर्न, देन वेंट्रल रूट हो गया, देन द स्पाइनल नर्व, कैन सी. ये व्हाइट रेमाई कम्युनिकेंट्स होंगे. व्हाइट रेमाई क्यों कह रहे हैं इसको, व्हाइट इज कॉल्ड व्हाइट रेमाई कम्युनिकेंट्स बिकॉज इट इज हैविंग दीज नर्व्स. जो प्री गैंग्लियनिक नर्व्स हैं वो माइलिनेटेड नर्व्स होते हैं. माइलिन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ, ये बताया था प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स क्या होते हैं, माइलिनेटेड होते हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाइट रेमाई कम्युनिकेंट्स. ओके, देन देयर इज, दिस इज द पैरावर्टिब्रल गैंग्लियर और चेन गैंग्लिया कह रहे थे आपको, है ना.
then this is gray MI communicants. So this is the basic architecture here. Okay, इस तरह से so this is the thing which is written here. Sympathetic preganglionic axons, preganglionic axons जो आ रहे थे, it leaves the spinal nerve, spinal nerve को लीव करके कहाँ गया, गैंग्लिया में, है ना, through the white rami communicants. They enter the paravertebral sympathetic ganglia, okay, which is the interconnected ganglia we all know. Then what happens that these preganglionic neurons, ये जो preganglionic neurons जो आ रहे हैं डिफरेंट सेगमेंट, थोरैकोलंबर से आने हैं ना, इसको थोरैकोलंबर से आने, व्हाट हैपेंस दैट जब आप स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में होते हो ना, व्हाट हैपेंस योर ब्रेन परसीव दैट थ्रेट, है ना, ये परसीव करने के बाद क्या होता है, जो हमारा सेंट्रल सिंपैथेटिक कमांड होता है बेसिकली इन द हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस, दैट इज एक्टिवेटेड, वो एक्टिवेट होता है सिंपैथेटिक डिवीजन, देन थ्रू द न्यूरॉन डिफरेंट पॉलीसिनेप्टिक न्यूरॉन, ये नीचे जाता है हमारा सिंपैथेटिक डिवीजन, और वहां पे क्या है, फाइबर्स निकल रहे हैं सिंपैथेटिक डिवीजन पे, उसको एक्टिवेट करते हैं, इसको एक्टिवेट करेंगे सिंपैथेटिक डिवीजन से प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स, गैंग्लियन से पहले वाले वो स्टार्ट हो रहे हैं कहां से, स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना, ऊपर से लेकर के आया पॉलीसिनेप्टिक फाइबर्स, और ये इसको इंफॉर्मेशन देते, ठीक है, देन दैट इज एक्टिवेटेड, सो प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स इज एक्टिवेटेड। अब प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स एक्टिवेट होते हैं तो ये पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स को फिर एक्टिवेट करना है, सो दैट में डिफरेंट डेस्टिनेशन। अब ये क्या होता है, हर लेवल है ना, आपको सर्वाइकल, देन थोरैसिक, देन सैक्रल, लंबर, ये डिविजन्स है। सो व्हाट हैपेंस दैट जो कुछ फाइबर जो निकल रहे हैं, हो सकता है जो गैंग्लिया सेम लेवल पे गैंग्लिया है, गैंग्लिया के भी आपको बताया चेन ऑफ गैंग्लिया है ना साथ में, उसके भी डिफरेंट पार्ट्स है, सर्वाइकल है, थोरैसिक, उसके भी पार्ट। तो क्या होता है, कुछ फाइबर जो होते हैं सेम लेवल पे जो गैंग्लिया होते हैं वहां पे जाके टर्मिनेट करते हैं, है ना, और वहां से फिर पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स निकल जाएंगे सेम लेवल पे, समझ आ रही है। सपोज T5 पे निकला तो T5 के गैंग्लिया जो हो गए, उस लेवल पे जो गैंग्लिया है उसको एक्टिवेट किया, पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर और एक्शन हो गई। लेकिन कुछ फाइबर क्या होते हैं, निकलते तो है वहां से, निकलने के बाद गैंग्लिया में जाएंगे जरूर, उस लेवल पे गैंग्लिया में जाने के बाद क्या होंगे, वहां टर्मिनेट नहीं करेंगे, वो क्या होंगे, या तो ऊपर चले जाएंगे सेम प्री गैंग्लियनिक फाइबर, या तो ऊपर चले जाएंगे या नीचे चले जाएंगे, मे बी 1 डिवीजन और 2 डिवीजन, मोर देन दैट ऑल्सो, है ना, या क्या होंगे, ऊपर असेंड करेंगे या डिसेंड करेंगे, और तब जाके वहां पे साइनेप्स करेंगे और पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर उस लेवल से निकलेगी। समझ में आ रही बात? दिस इज द सेकंड सिचुएशन, बट देयर आर अनदर सिचुएशन एज वेल। देन देयर विल सम न्यूरॉन्स, कुछ प्री गैंग्लियनिक फाइबर ऐसे भी होते हैं जो निकलते हैं स्पाइनल कॉर्ड से, निकले आपको गैंग्लिया में पहुंचे, गैंग्लिया में पहुंचने के बाद वहां पे टर्मिनेट नहीं किया, ना तो ऊपर गए ना नीचे गए, वो क्या हो गए, फर्दर आगे बढ़ गए, उसको क्रॉस कर गए, क्रॉस करने के बाद कोई दूसरे गैंग्लिया में जाकर के वो टर्मिनेट करते, समझ में आ रही है, कोई दूसरे गैंग्लिया में जाके टर्मिनेट करते, ओके, दैट में भी उसको हम कहते हैं प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया कहते हैं, दैट इज मोर क्लोज टू द इफेक्टर ऑर्गन, समझ में आ रही है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया कहते हैं। ये तो पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया थे, वो प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन हो गए, उसको हम प्री आयोटिक गैंग्लिया भी कहते हैं, कोलैटरल गैंग्लिया भी कहते हैं, ओके। सो देयर आर डिफरेंट सिचुएशंस एक्चुअली, है ना, प्री गैंग्लियनिक फाइबर जो एग्जिट कर रहे हैं, जो दैट में हैव डिफरेंट डेस्टिनेशंस एक्चुअली, okay, that may terminate at the same level of the ganglia, and then the post ganglionic fiber arise up to the target organ. And the second set of situation may be pre-ganglionic fibers nikle, that may ascend up or descend without synapsing in at that level ganglia, है ना, और वहां जाकर के वो synapse किया, वहां से जाकर post ganglionic fiber action के। Then the third situation, ना तो ऊपर गए ना नीचे गए, वो क्रॉस कर गए उस गैंग्लियन को, अनदर सेट ऑफ गैंग्लिया में जाकर टर्मिनेट किया, और वहां से पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर। देन देयर विल अनदर फोर्थ सिचुएशन। फोर्थ सिचुएशन एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन ये होता है, वो वहां पे प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स निकले, गैंग्लिया में वो टर्मिनेट नहीं किए, वो सीधा चले गए, प्री गैंग्लियनिक फाइबर सीधा टारगेट ऑर्गन तक चले गए,
मतलब पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स उसमें वो ऑर्गन में ही बन जाता है ना, ऑर्गन ही मॉडिफाइड फॉर्म में एक तरह से वो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स की तरह काम करता है। समझ में आ रहे? दैट इज ए सिचुएशन, एग्जांपल जानते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल गैंग्लिया। टर्मिनल गैंग्लिया, द क्लासिकल एग्जांपल इज द सप्लाई ऑफ एड्रेनल मेडुला। एड्रेनल ग्लैंड होते हैं ना, एड्रेनल ग्लैंड में कॉर्टेक्स होता है, मेडुला होता है। मेडुला रिलीजेस व्हिच इंपॉर्टेंट इपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, दैट इज द स्ट्रेसफुल सिचुएशन के लिए काम आता है ना। सो दीज आर द डिफरेंट सिनेरियोज which may happen, may synapse with, you can now understand this very easily. These preganglionic fibers, it may synapse with the postganglionic neurons in the paravertebral ganglia at the same level, or it may ascend up or descend down several two different spinal segments, समझ में आ रही है, and then synapse with the postganglionic neuron। हो सकता है ना? सेम सिचुएशन यहाँ पे दिखाया है इधर, ये तो सेम लेवल पे जाकर यहां से निकला और इसी लेवल पे जो गैंग्लिया थे वहां पे साइनैप्स किया। आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस? बोलो यस नो, है ना। ये प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स निकले इधर, इधर आपको व्हाइट रेमाई कम्युनिकेंट इधर इंटर किया, यहां से पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स निकल गया, ग्रे रेमाई कम्युनिकेंट, ये इफेक्टर ऑर्गन तक चले सेम लेवल पे। ओके, then this is the another situation, that is it is descending up or down, है ना। यहाँ पे आया, यहाँ पे जाके साइनैप्स नहीं हुआ, इट इज असेंडिंग अप और वहां से पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स निकल गए, ठीक है। देन डिसेंड डाउन कर रहा है और देन पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स निकल गए, ठीक है। क्या हुआ बेटा? व्हाट हैपेंड? इधर आ जाओ, इधर कम हियर। क्या हुआ? वॉशरूम लग गया? हाँ, वॉमिटिंग हो रही है? वॉमिटिंग तो किया गया इधर, कोई और वॉमिटिंग करना है तुम्हें? जाओ। सो द प्री गैंग्लियनिक एक्सन्स में पास थ्रू द, जस्ट रिलैक्स, paravertebral ganglia without synapsing there to terminate in the prevertebral ganglion। प्रीवर्टिब्रल गैंग्लियन उस गैंग्लियन में नहीं गया, पैरावर्टिब्रल वाले में साइनैप्स नहीं किया, अनदर गैंग्लियन में साइनैप्स किया, दैट इज कॉल्ड कोलैटरल गैंग्लियन। ओके, यू कैन सी हियर, दिस इज वन ऑफ द कोलैटरल गैंग्लिया। यहां से इधर आने के बाद एक अलग से पाथवे ले लिया, ये आया जरूर इसमें, इस गैंग्लियन में, लेकिन यहाँ टर्मिनेट नहीं किया, दूसरा गैंग्लिया में आकर टर्मिनेट करा। ओके, दैट इज कॉल्ड प्रीवर्टिब्रल गैंग्लियन। प्रीवर्टिब्रल गैंग्लियन डिफरेंट टाइप से होते हैं, डिफरेंट, कौन कौन से प्रीवर्टिब्रल गैंग्लियन होते हैं? प्रीवर्टिब्रल गैंग्लियन में भी सीलियक गैंग्लियन या ऑटिक रीनल गैंग्लियन कहते हैं, जो रीनल एरिया को जा रहा है। देन देयर इज सुपेरियर मेजेंट्रिक गैंग्लियन, ये नाम है। ओके, देन इंफीरियर मेजेंट्रिक गैंग्लियन। ओके, सीलियक गैंग्लियन, ये दो, सुपेरियर मेजेंट्रिक गैंग्लियन, देन देयर में भी इंफीरियर मेजेंट्रिक, एक और गैंग्लियन होता है रीनल गैंग्लियन, ऑटिक रीनल गैंग्लियन कहते हैं। ओके, सो ये क्या हो रहा है? देखो यहां से सप्लाई, बेसिकली ये सीलियक गैंग्लियन जो है ना, बेसिकली आपको जीआईटी के जो स्ट्रक्चर्स है वहां पे जा रहे हैं, सुपीरियर मेजेंट्रिक एंड इंफीरियर मेजेंट्रिक एज वेल। ओके, ये आगे देखेंगे। देन सिंपैथेटिक गैंग्लियन, हमने बताया आपको पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन में कौन कौन से हो सकते हैं गैंग्लियन? सर्वाइकल गैंग्लियन, देन थोरैसिक गैंग्लियन, लंबर एंड सैक्रल गैंग्लियन। सो दीज आर द स्ट्रक्चर। ये बुक में दिया रहता है, आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। यू कैन सी हियर, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड हेयर, ये है ना, यहाँ से निकल रही है थोरैको लंबर आउटफ्लो, सिंपैथेटिक डिवीजन निकल रहा है ना, थोरैको लंबर आउटफ्लो। देन यू कैन सी हियर, यहाँ से निकला ये पाथ में, सेम लेवल पे ये जो साइड में जो गैंग्लियन है चेन के तरह लग रहा, दिस इज द पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन, है ना, चेन गैंग्लियन जिसको कह रहे हैं, दिस इज द चेन गैंग्लियन, है ना। ये यहां से प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स निकल रहे, है ना, ये प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स निकला, उसके बाद यहां से यू कैन सी हियर, या तो सेम लेवल पे टर्मिनेट कर रहा है, फिर पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स निकला, या यहां से असेंड कर जाते हैं ऊपर में,
और वहां से जाकर, इसलिए ये सर्वाइकल गैंग्लिया बना रहे हैं, क्योंकि ये निकल तो रहा है थोरेसिक थोरैकोलंबर एरिया से, लेकिन ये असेंड और डिसेंड कर सकता है ना, तो असेंड करने के चलते क्या ऊपर में भी गैंग्लिया बना लेते हैं, इसलिए सर्वाइकल पार्ट भी होता है, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर एंड सैक्रल, isn't it? So you can see here there are different parts, that is the जो सर्वाइकल गैंग्लियन है, इसमें जो सर्वाइकल गैंग्लियन, सर्वाइकल पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन यू कैन से, है ना, चेन गैंग्लियन. So it is divided into superior cervical ganglion, middle cervical and inferior cervical ganglion. जो superior cervical ganglion है ना, it is mainly supplying your eyes muscles of your eyes like cranial gland, head and neck area. ठीक है, जो सर्वाइकल गैंग्लियन है मेनली आपको हेड एंड नेक एरिया को सप्लाई कर रहा है. ठीक है, कैन सी हियर, ये ऊपर से जा रहा है ना, आई को जा रहा है, सैलिवरी ग्लैंड्स को जा रहा है. ठीक है, देन मिडिल एंड इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, समटाइम्स दे मे फ्यूज एंड दैट इज कॉल्ड स्टिलेट गैंग्लियन. इसको स्टिलेट गैंग्लियन कहते हैं, है ना, वो भी आपको सप्लाई कर रहा है. यू कैन सी हियर, वो हेड एंड नेक एरिया कर रही है, थोरैसिक पार्ट्स को आ रहा है ना, मे बी हार्ट, ब्रोंकस. ओके, so this is supplying that area. Then you can see here thoracic से आ रहा है इधर T1 T2, T1 और T2 किधर जा रहा है, ये some part is going to the head and neck area and rest to the thoracic area. ठीक है, उसी तरह T3, T4, T5, T4, T3 and T4 it is supplying this thoracic structures. ठीक है, देन ये देखो अब T5 से लेकर T9 तक आया, यहाँ के मोस्टली फाइबर्स क्या आ रहे हैं, ये पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन है. दीज आर द पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन, है ना, ये पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन, दैट इज द सीलियक गैंग्लियन, सुपीरियर मेसेंट्रिक, इंफीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन. सीलियक गैंग्लियन किसको सप्लाई कर रहा है मेनली, दिस इज द सीलियक गैंग्लियन, देख रहे हो, मेनली द विसरास, है ना, द लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, स्प्लीन, पैंक्रियास. ओके, एड्रेनल मेडुला के लिए क्या है, टर्मिनल गैंग्लियन स्पेशल जा रहे हैं उसके लिए, है ना, प्री गैंग्लियनिक फाइबर. देन सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन इज सप्लाइंग मेनली द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन अप टू द ट्रांसवर्स कॉलम. देन यू कैन सी हियर द इंफीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन L1 L2 इधर कुछ सैक्रल पार्ट्स के आ रहे हैं. It is mainly supplying this some part of the large intestine and the genital area. Okay, rectum, bladder, all the genital structures. So superior cervical ganglion, ये collateral ganglion की बात, ये आपको paravertebral ganglion की बात है, chain ganglion. Superior cervical ganglion, it is innervating the structures in the head, है ना, like muscles of the iris. आपको stressful situation में क्या है, which muscle of the iris will be activated? उसमें पुपिलों में डायलेटर पुपिली होता है, आपको पता है ना, सिलियरिस मसल होता है ना. यू नीड टू हैव मोर विजन इन द टाइम ऑफ स्ट्रेस, आपको ज्यादा दिख रहना चाहिए. सो फॉर दैट इट इज एक्टिवेटिंग दिस थ्रू दिस सर्वाइकल, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन. ओके, सो द मसल्स ऑफ द आइरिस, द मुलर मसल्स which assist in elevating the eyelids, then the lacrimal and salivary glands. salivary secretion क्या होंगे, ज्यादा होंगे या कम हो जाएंगे, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कम हो जाएंगे, and lacrimation will increases, lacrimation बढ़ जाता है. okay, then middle and inferior cervical ganglion, they innervate the structures in the chest including the trachea, esophagus, heart and lungs. Often I have told you that these two ganglion, inferior cervical and first thoracic, I have told you middle and inferior, that is the inferior cervical and first thoracic ganglion, sometimes they fuse and they form the stellate ganglion. Okay? Then there is thoracic ganglion. These are about 12 thoracic ganglion. Mainly it is supplying the thoracic structures as well as the structures in the gut. Then lumbar and sacral ganglia. Then prevertebral ganglion कौन कौन से थे आपको बताया ना, mainly for the prevertebral ganglia mainly आपको किसके लिए होता है, abdominal structures and the genital structures, इसके लिए prevertebral ganglion है, that is the collateral ganglion.
पेल्विक ऑर्गन्स के लिए. सो 3 मेजर प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन एक और होता है, सीलियक गैंग्लियन, देन ओर्टिको रीनल गैंग्लियन भी एक होता है, देन सुपीरियर मेजेंट्रिक गैंग्लियन, देन इंफीरियर मेजेंट्रिक गैंग्लियन. ठीक है. सो पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन एंड प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन. अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द डिफरेंट पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन, यू कैन नेम द सर्वाइकल गैंग्लियन, थोरैसिक गैंग्लियन, है ना, लंबर, सेक्रल. सर्वाइकल में सुपीरियर सर्वाइकल, मिडिल, इंफीरियर सर्वाइकल, है ना, that is a different ganglion. Then there is another set of ganglion which is closer to the target organ, that is called the prevertebral ganglion. वो ये ganglion का नाम बताना है. Okay, celiac ganglion, this is the preganglionic axons. इसमें T5 to T12 वाला जो निकलते हैं, T5 और T12 के लेवल से जो निकल रहे हैं, okay, this is going to the celiac ganglion. Okay, and it provides innervation to the stomach, small intestine, liver, pancreas, gallbladder, different viscera, basically abdominal viscera. और इसको नर्व को क्या कहते हैं, जो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स लेके जा रहे हैं. प्रीवर्टिब्रल गैंग्लियन में क्या है आपको पता है, सीलियक गैंग्लियन बताया ना. सीलियक गैंग्लियन मेनली आपको किसको सप्लाई कर रहा है, विसरल ऑर्गन्स को, ये स्टमक, गॉलब्लैडर, लीवर, पैंक्रियास, these are structures. सो इसके जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स निकल रहे हैं उसको स्प्लैंक्निक नर्व्स कहते हैं. स्प्लैंक्निक नर्व, either it may be greater splanchnic nerve, lesser splanchnic nerve or least splanchnic nerve, है ना. उसको हम पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व्स को कहते हैं, स्प्लैंक्निक नर्व्स. स्प्लैंक्निक ऑर्गन्स को जा रहे हैं इसलिए. देन सुपीरियर मेजेंट्रिक गैंग्लियन, ये जो गैंग्लियन, इसके जो फाइबर्स कहाँ से आ रहे हैं, T10 टू T12 तक, T10 से T12 तक. वो स्ट्रक्चर्स में डायग्राम में देखोगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा वहां से कहाँ से निकल रहे हैं. It is mainly supplying the small and large intestine. Okay. The inferior mesenteric ganglion is fibers coming from किस लेवल से आ रहे हैं, L1 to L3. ठीक है, मे बी अप टू L2 और L3. किसी में L2 तक ही रहता है, किसी में L3 तक भी जा सकता है. ओके. इट इज इनोवेटिंग मेनली द लार्ज इंटेस्टाइन का जो टर्मिनल पोर्शन है, लोअर पार्ट ऑफ द कोलोन, रेक्टम, ब्लैडर एंड ऑल द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. समझ आया. सो यू कैन, इस स्ट्रक्चर से आप समझ सकते हो. सो टर्मिनल गैंग्लियन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इज लोकेटेड इन द ऑर्गन, है ना. 4 टाइप ऑफ गैंग्लियन जो हो रहे थे, 4 टाइप के फाइबर जो जा रहे थे, दैट इज कॉल्ड द टर्मिनल गैंग्लियन. एंड दीज गैंग्लियंस आर लोकेटेड इन द ऑर्गन. वो ऑर्गन में ही इनर्वेटेड होते हैं सीधा. प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स अप टू ऑर्गन तक जाते हैं, है ना. और एज सच ऑर्गन ही पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स का वो दैट इज अनदर फॉर्म ऑफ पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स. ओके. सो एग्जांपल्स आर मेनली एड्रेनल मेडुला. हार्ट में भी कुछ सप्लाई इस तरह के आते हैं, पैंक्रियाज में भी आते हैं, यूरिनरी ब्लैडर. मेनली एड्रेनल मेडुला आपको याद रखना है. ओके. सो दैट्स व्हाई this adrenal medulla is also called neuroendocrine structure, क्योंकि पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर से ही बन रहे हो, मेनली उसी का फॉर्म है वो जो मेडुलरी पार्ट है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूरोएंडोक्राइन स्ट्रक्चर, न्यूरल स्ट्रक्चर से बने. ओके. इट इज इनर्वेटेड डायरेक्टली बाय प्री गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स. डायरेक्टली जा रहे प्री गैंग्लियनिक फाइबर. एंड मेनली वहां पे एक सेल होते हैं ना, आपको पता है, क्रोमाफिन सेल्स होते हैं, विच रिलीजेस मेनली द इपिनेफ्रिन और नॉरइपिनेफ्रिन. ज्यादा कौन रिलीज होता है वहां से, हाँ, इट इज इपिनेफ्रिन. 80% इज एपिनेफ्रिन एंड सम अमाउंट इज नॉरइपिनेफ्रिन एज वेल. नॉरइपिनेफ्रिन कहां से आता है, इट इज कमिंग टू द पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर, जो सिंपैथेटिक फाइबर्स निकल रहे हैं, है ना, दूसरे जो स्मूथ मसल्स में जा रहे हैं, है ना. वहां पे जो स्ट्रक्चर्स है, वहां से जो वहां पे जो रिलीज हो रहा है, वहां पे मेनली नॉरइपिनेफ्रिन होते हैं. So it is considered modified sympathetic ganglion, modified form of sympathetic ganglion. Mainly the ganglia का ही एक तरह से modified form है. So this is the structure you can understand now. यहाँ से आया ना प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स, इधर से देखो निकल के आ रहा है, सीधा यहाँ एड्रेनल मेडुला पे जा रहा है ना. एंड इट इज रिलीजिंग दिस मेनली द इपिनेफ्रिन. यहाँ पे कैपिलरीज नेटवर्क होते हैं,
इसमें रिलीज हो जाता है और वाइड स्प्रेड पूरे बॉडी में आपको ये जाता है। एंड दोज एरियाज विच आर हैविंग दीज रिसेप्टर्स, है ना, जहां जहां पे रिसेप्टर होगा हर जगह पहुंच रहे हैं, दैट विल बी एक्टिवेटेड। सो दोज एरियाज ऑफ योर बॉडी विच विल हेल्प इन दैट सिचुएशन, है ना, वो एक्टिवेट हो जाएंगे, isn't it? So similarities between sympathetic and parasympathetic, दोनों में क्या, दोनों में दो न्यूरॉन सिस्टम होते हैं, प्री गैंग्लियनिक पोस्ट गैंग्लियनिक दोनों में ही रहेंगे, ओके। एंड ये थोड़ा आपको समझ लो, ये सिंपैथेटिक है और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स निकल रहे हैं। पैरासिम्पैथेटिक को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दिस इज द स्ट्रक्चर्स हियर, यू कैन सी हियर द सिंपैथेटिक सिस्टम, प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन आए गैंग्लिया में, पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन टारगेट ऑर्गन पे। यहाँ पे भी इसी तरह से है, गैंग्लिया में आके पोस्ट गैंग्लियन, लेकिन डिफरेंस क्या आ रहा है, लेंथ, रिलेटिव लेंथ, यू कैन सी हियर। यहाँ पे प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स शॉर्ट होते हैं और पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर ज्यादा लंबे हैं। यहाँ पे उल्टे है, पैरासिम्पैथेटिक में क्या है, प्री गैंग्लियनिक इज लॉन्गर एंड पोस्ट गैंग्लियनिक शॉर्ट होते हैं, इससे गैंग्लियन क्लोजर टू द टारगेट ऑर्गन होते हैं, है ना। एंड दोनों क्या है, प्री गैंग्लियनिक फाइबर दोनों माइलिनेटेड होते हैं, है ना, दोनों माइलिनेटेड होते हैं, सिमिलैरिटीज है। तो ये आप न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में है। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक में जो गैंग्लिया का एरिया है वहां पे दैट इज कोलिनर्जिक, वहां पे कोलिनर्जिक होता है, निकोटिनिक कोलिनर्जिक कहते हैं। कोलिनर्जिक में भी दो तरह के होते हैं, एक मैस्करेनिक और निकोटिनिक, दो अलग अलग सब्सटेंस है, दोनों से रेस्पॉन्ड करते हैं, इसलिए कहते हैं, है ना। यू कैन सी पैरासिम्पैथेटिक, ये हर जगह यहाँ पे गैंग्लिया के पास में देखो एसिटाइल कोलिन है, सारे गैंग्लिया में। दिस इज अनदर सिमिलैरिटी, है ना। गैंग्लिया में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो कौन से हैं, एसिटाइल कोलिन है, वेदर इट इज सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। यहाँ पे क्या, पोस्ट गैंग्लियनिक में यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे एसिटाइल कोलिन, पैरासिम्पैथेटिक, है ना। देन यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होंगे सिंपैथेटिक वाले में, नॉरएपिनेफ्रिन, यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन मेनली होता है, इपिनेफ्रिन ज्यादा आता है एड्रेनल मेडुला, नॉरएपिनेफ्रिन यहाँ पे, है ना। हार्ट में हो गया, ब्लड वेसल्स में, लेकिन एड्रेनल मेडुला में तो डायरेक्ट आ रहा है प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स, है ना, यहाँ पे इसको टारगेट ऑर्गन, यहाँ पे इपिनेफ्रिन ज्यादा निकल। बट देयर आर सर्टेन अदर फाइबर्स, वो है तो सिंपैथेटिक लेकिन एक्सेप्शंस है वो, उसके पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स निकालने तो चाहिए थे क्या, नॉरएपिनेफ्रिन, लेकिन वो क्या है, एसिटाइल कोलिन एंड न्यूरोट्रांसमीटर है, ये एक्सेप्शंस है, ये हर जगह नहीं होते। लाइक स्वेट ग्लैंड्स में होते हैं, आपको एरेक्टर पाइली मसल्स होते हैं ना ईयर्स में, वहां पे होते हैं। देन देयर आर सर्टेन ब्लड वेसल्स में होते हैं स्केलेटल मसल्स, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको समझना है। नेक्स्ट क्लास में हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम विल डिस्कस।